ناظرین، اس وقت ہم لاہور جنرل ہسپتال کے باہر کھڑے ہیں اور یہ ایمرجنسی میں آنے والے سینکڑوں لوگ یہاں پر ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ذلیل و خوار ہوتے ہیں؟ کیوں کر جب سے اس ہسپتال کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین تعینات ہوئے، اس ہسپتال کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اس ہسپتال میں نہ تو لوگوں کو دوائیاں نصیب ہیں، نہ لوگوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور آپریشن کا ٹائم بھی نہیں ملتا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین جو ہیں وہ سابق چیف سیکرٹری حفیظ اختر رندھاوا کے بہت قریبی رشتہ دار ہیں، جس کی وجہ سے وہ طاقت کے گھمنڈ میں اتنے مغرور ہیں کہ انہوں نے آج سے ایک ہفتہ پہلے ایک بزرگ عورت جو ان کے غلطی سے دفتر پہنچ گئی، اس کو تھپڑ مار کے دفتر سے باہر نکال دیا۔ اور پروفیسر صلاح الدین کا یہ رویہ ہے کہ وہ یہاں پر اپنے ڈاکٹروں کو اور اپنے سبارڈینیٹ سٹاف کو نہ صرف غلیظ اور گندی گالیاں دیتے ہیں بلکہ وہ ٹھڈے مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ کیا اسی کو مسیحا کہا جاتا ہے؟ کیا ایسے ہی پروفیسر جو ہیں ان کو یہاں پر تعینات کیا جانا چاہیے؟ کیا ایسے پروفیسر جو ہیں وہ ایک مسیحائی کے نام پہ ایک کلنک نہیں ہے؟ کیا پروفیسر فیصل ناظرین، یہاں پر پروفیسر صلاح الدین کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آج تک جتنی مشینیں خریدی گئی ہیں اس میں انہوں نے مبینہ طور پہ بھاری کمیشن لیا ہے۔ آج اگر یہ بلڈنگ کی حالت دیکھیں تو یہ بلڈنگ آج تک تعمیر نہیں ہو سکی اور اس کی وجہ صرف اور صرف کمیشن ہے۔ یہاں کے ڈاکٹر پریشان ہیں، یہاں کی نرسز پریشان ہیں، یہاں آنے والے مریض پریشان ہیں، کیونکہ یہاں پر اگر چلتا ہے تو ایک ہی سکہ چلتا ہے، پرنسپل کا سکہ۔ وہ پرنسپل جب یہاں سے گزرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے بادشاہ سلامت گزر رہے ہوں۔ یہ پرنسپل جو ہے انہوں نے خادم اللہ پنجاب کو بھی شیشے میں اتار رکھا ہے۔ لوگوں کو دوائیاں نصیب نہیں ہیں، لوگوں کو معمولی ٹیسٹ کرانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے۔ کیا کوئی ایسا ہے جو پروفیسر صلاح الدین کو نکیل ڈال سکے؟ کیا شہباز شریف صاحب میں اتنی جرت ہے کہ وہ پروفیسر صلاح الدین کو یہاں سے تبدیل کر سکے؟ بالکل نہیں۔ اس لیے کہ پروفیسر صلاح الدین ایک ایسا مافیا ہے جس نے ڈاکٹروں کی ہڑتال کرائی۔ پروفیسر صلاح الدین ایک ایسا مافیا ہے جو کہ اپنے سٹاف کے ساتھ مل کے ہیرا پھیریاں کرتا ہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں اور چل کے ہم عام عوام سے بات کرتے ہیں کہ وہ کتنی ذلت و خواری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آئے ناظرین چلیں۔ میرا نام طیب خان، میں میاوالی سے آیا، ضلع عیسیٰ خیل۔ کیا مسئلہ؟ ہمارا مریض کو رسولی ہے، 1.5 مہینہ ہو گیا ہم ادھر آیا تو آپریشن نہیں ہوتا ہے، تو ڈاکٹر نے ہڑتال شروع ہو گیا، 1.5 مہینہ ہو گیا جو ہڑتال کرتا ہے، تو کوئی اس طرح آدمی نہیں ہے جو کسی پوچھنے والا کوئی نہیں ہمارا۔ اور اسپتال میں ویک لو کوئی گند ویک لو جو جس طرح گند پڑا ہے، کوئی اس طرح آدمی نہیں ہے جو اس کو بتاوے یہ صفائی تو کرو۔ اور مریض مر رہا ہے، کوئی اس طرح نہیں بولتا ہے، کبھی دوسرے دن ابھی تک کوئی پوچھنے والا ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوئی نہ کرے تو ہم کیا کریں؟ اب 1.5 مہینے سے کیا بیٹھے؟ 1.5 مہینہ ادھر ہی پڑھ رہے ہیں۔ کتنا خرچہ ہو گیا؟ تو ہمارا خرچہ تو لاکھوں کے حساب ہو رہا ہے۔ 60-70 ہزار روپے میں نے باہر سے ٹیسٹ کروایا تھا، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہمارا۔ باہر سے کراتا ہوں، یہاں کوئی ٹیسٹ نہیں؟ ادھر ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ ہے جو معمولی کا ہے، باہر سے بڑا ٹیسٹ کرانا ہے، 4,000-5,000 روپے کا ایک ٹیسٹ ہے، تو ہم کدھر سے لیوا؟ غریب لوگ ہیں ہم۔ یہ سارا ویک لو اس طرح پڑ رہے ہیں، اس کا 2 مہینے ہو گیا، یہ دوسرے کا 2.5 مہینے ہو گیا، 1.5 مہینہ ہو گئے تھے بیٹھے ہیں، کوئی علاج وغیرہ کوئی نہیں، جو خرچہ ختم ہو گیا، بس مجبوری ہے کیا کرے، ٹیسٹ باہر لے کر دیتے ہیں، لے آتے ہیں، پیٹ میں کوئی بات بھی نہیں سنتا۔ سر ہمیں ادھر اپنا رہتے، میرے بیٹے کے 6-7 آپریشن ہو چکے ہیں، ابھی ایک آپریشن اور ہونا 7 دن ہو چکے ہیں، روزانہ یہی کہہ رہے ہیں آج کریں گے لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ رات کو انہوں نے کہا کہ صبح بچے کا آپریشن ہوگا لیکن کھانا پینا بچے کا بند کر دو، ہم نے کیا، ابھی انہوں نے کہا کہ کھانے کو دو لیکن اس کی الٹی جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے، اب انہوں نے کہا ڈرپ لگا دو، آہستہ آہستہ درمان آ جائے گا۔ بس ہمارا تو یہی لایا اپنا یہ شہباز شریف سے اپنا تجھے ریکویسٹ ہے کہ وہ ان ہسپتالوں میں جو مریض ہیں ان کی ہیلپ کریں اور ان کی امداد کریں، کچھ نہ کچھ
तावान उन्हें करना चाहिए। 3 दिन हो गए यहाँ पे, उसका एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ कोई डॉक्टर पूछता ही नहीं है, ना कोई मेडिसिन मिलती है। यहाँ पे बाजार से मेडिसिन लानी पड़ती है। किस काम की हुकूमत है ये? गरीबों का इनको कोई ख्याल है ही नहीं। सब लूट मार रहे हैं। हाँ जी, सब यहाँ लूट मार है, सब करप्ट टोला रला हुआ सब। क्या करें, किसके आगे जाके फरियाद करें हम लोग? वजीर वाला तो बहुत बढ़ के लगाते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्या किया उसने हमारे लिए? कोई मर रहा है, कोई पूछता ही नहीं यहाँ पे। तो वोट देंगे उसको? तो कभी नहीं देंगे। ये वोट लेने के काबिल है, हम इनको वोट दें? इनको तो मुंह काला करके यहाँ से निकल जाना ये पाकिस्तान से। ये कहते हैं हम गरीबों के हमदर्द हैं। क्या इनमें हमदर्दी है? ऑपरेशन ही करवाना मीए दा, वो भी गरीब है, साडे कोलों नहीं मतलब होया जांदा, कोई काम नहीं हुंदा, ना कोई सानू कोई देण वाला ना कोई लैण वाला। ते किसी भैन भरा को मांगे कोई थोड़ी बहुती दवाई कर लई दी, दवाई लै ली दी। हुण असीं बहुत मजबूर आ, असीं कित्थे जाए? रो रो के अपने दिन पूरे करन डए आ। मैं बहुत मेरा असलो मतलब कि कमजोर है, तो इस तरह नजदीक नीवा हो गया कमर तो चलता भी। मैं भी बीमार है, मेरे पेट च भी कुछ है, ब्लड प्रेशर, बहुत तकलीफ हो रही है, सिर नहीं बिल्कुल उठता। तो पैसे तो हर चीज मतलब कि पैसे ना बनती, तो किदे कोलों हुण लईए दसो पैसा? डॉक्टर ने तो खिदमत ही करनी, बाकी मेडिसिन पिछों आनगी, पिछों मेडिसिन आन गया, सानू गरीबां नूं फेर ही मिलन गया ना। तो पिछों ही कोई चीज नहीं आ रही, तो फिर आगो की मिलेगा? कुछ भी नहीं। गरीब आवाम है, किस तरह कोई धक्के खा रहा है, रोटी नहीं पूरी हो रही, मरीजां दी दवाई नहीं पूरी हो रही, किस तरह होए? डॉक्टर कोलों तो नहीं जेब विच कढ के दे देंगे। डॉक्टर जिन्नी ड्यूटी, डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहा है, मुलाजम अपनी कर रहे हैं, बाकी बड़ी मेहरबानी है पिछों सानू भेजणगे तो अगों मिलेगा ना। जो पिछों कोई चीज नहीं मिलनी तो अगों की मिलेगा? कुछ भी नहीं। फार्म बड़े ने, उन्हां च 700 अंगूठा लवा लेंदे, 2 गोलियां दे लिखियां होंदियां 50 दियां, 2 रुपए ਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਕਾਤ ਫਾਰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ 50 ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੰਦੇ 2 ਨੇ। 2 ਯਾਨੀ ਕਿ मेडिसिन देनी होती है। हाँ जी, यानी कि जिन्नी दवाई देनी है ना, हाँ जी, वो नहीं देते। वो नहीं देते। जेड़ी सही दवाई है वो देनी नहीं, दवाई देंदे ने। जेड़ी 2-3 गोलियां देतियां 3rd क्लास, हाँ 3rd क्लास, दूजी कोई नहीं देती। सर जी वो कहते हैं कि ज़कात फंड खत्म हो गया, वो टेम्परेरी जो 2-4 गोलियां फड़ा देंगे, बाकी मेडिसिन सारी बाहरों लियाने पे। वो मरीज सारे ही कल्पड़े ने कि ज़कात फंड का फायदा कोई नहीं है। असि उन्होंने कागज भी बनवाए ने, ते कोई उन्होंने कोई हाँ जी दलील होना पैंदा, पहलो 4 फोटो कापियां कराओ, फिर उत्थे लैन धुप्पे सड़ो, कोई जगह भी नहीं हैगी, फिर दवाई लैन जाना ते 3 घंटे बाद तुहाडी वारी आनी। इत्थे मरीज दा भावें जेड़ा दाखिल होंदा ओदी भावें कोई एमरजेंसी कोई ऐसी हो सकता है, कोई मरीज की कोई खबर नहीं लाने। बाहर छुट्टी है, हाँ जी, तो बेवा औरत कोई आसरा नहीं है मेरा, 3 बच्चियां बेवा औरत में बस धक्के खानियां, सदके मंगदी अपने बच्चे बच्चियां इन्होंने मारे इतने गुर्दे वाश की मेरे खावन दे, कहते तो मैं कागज भी लिया के तुम दिखा देनी है। जैसे गुर्दे वाश की इन्होंने बाहर लेके सुटे, बीबी शहजाद ले जा, मैं कहा मैं शहजाद पैसे देने वाली हाँ, मार दे तुसी उत्ते खड़ दे उत्थे। मैं कहता बीबी दोबारा आना नहीं पेगा। उत्थे जाके मैं मिन्नतां तरले की उन्होंने 3000 दाखिले दा मंगया, मैं कहा मैं कित्थों दवां? फिर एक आदमी आया बाहर, उन्हें अल्लाह वास्ते सदके दे विच मैनू दाखिल किया, मेरा बंदा 10 किटा लग के मर गया बंदा मेरा, इन्होंने इस तरीके भेजे। हम किधर से लेकर आएंगे? पैसा हमारे पास होता नहीं, हमें खाने का रोटी के पैसे, खाने के पैसे नहीं होता, हम क्या करें? हम मजदूरी करें, क्या करें? मजदूरी नहीं करना चाहिए, हमारा खुला करने का कोई इलाज। बदमाश ने सब कुछ पाकिस्तान का लुट के खा गए, कौम का खजाना खाली करता है, मुल्क का खजाना खाली करता है। इन्होंने कोई शर्म हया ही नहीं हैगी कि इस कौम के नाल की सलूक किया जा रहा है। तेल नहीं हैगा, पानी नहीं हैगा, बत्ती नहीं हैगी, आटा नहीं हैगा, दवाइयां नहीं हैगी, मेडिकल नहीं हैगा, कोई किसी ने पूछने वाला है नहीं। अंधेर नगरी है और पाकिस्तान दे सब तो ज्यादा जुल्म हो रहा है, सब तो ज्यादा करप्शन हो रही है, सब तो ज्यादा बदमाशी हो रही है। जो चोर लुटेरा हुक्मरान बन के बैठ गया है। गंदगी बड़ी है अस्पतालों में। मेरी वालदा 4 दिन हो गए दाखिल है, वो जो सी भी मेडिसिन होती है वो कह रहे हैं जी बाहर से लेके आए, और डॉक्टर कोई आ ही नहीं रहा। वो 4 दिन हो गए, 4-5 दिन एक डॉक्टर आया था, बाद में आता ही कोई नहीं। अभी उन्होंने इतनी महंगी बाहर से दवाई मुँह आ रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ से लाए इतने पैसे? वो जिसको कहते हैं अगर वो नर्स को कहें या डॉक्टर को कहें, वो कहता है जी उन्होंने हड़ताल की वजह से हमारे बस की बात ही कोई नहीं है।
ये गंदगी की वजह से बीमारियां इतनी फैल रही हैं, मैं क्या बताऊं। जो कोई बच्चे को घर से नहीं लेके आ सकता या कोई वहाँ पे रह नहीं सकता। मैं आपको चले मैं खुद दिखाता हूँ, सारे बार हो रहे हैं। मैं कहता हूँ एक एक टेस्ट मेरे पास, ये देखें इतनी रिपोर्टें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये 4-4 2-2 हज़ार रुपए का मैं टेस्ट करवा गया हूँ बाहर से। ये 2-2 हज़ार रुपए का टेस्ट सारा बाहर से जी। तो ये इन्होंने कोई नहीं किया सर? ये टेस्ट हर मेडिकल कह रहे हैं बाहर से लेके। नहीं, वो इनकी कोई कमीशन होगी मेरे ख्याल। पता नहीं, ये देखें मैं बता रहा हूँ 5-5-6 कम से कम 2-2 हज़ार रुपए की मैं एक दिन में दवाई ला रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं? कोई अपनी मर्जी से करवा ले ना कहीं और लेबॉर्ट्री से, तो कहते हैं ये हम लेबॉर्ट्री से नहीं मानेंगे, इसकी हमें समझ नहीं, आप वो वाली लेबॉर्ट्री से करवा के लाए। अपनी मर्जी की लेबॉर्ट्री? बिल्कुल बिल्कुल अपनी मर्जी की लेबॉर्ट्री। कितने टेस्ट करा चुके हैं? ये तो मैंने अभी शेखपुरा से, लेकिन आज मैं पहले दिन आया था MRI के लिए। तो वो मैंने करवाया, उसकी मैंने 25 रुपया फीस दे को मैंने करवा ली, अभी करवा के आया हूँ। चलेंगे इनसे बात। जी ब्रदर, मैं डायलिसिस का पेशेंट हूँ। अच्छा 3 साल से डायलिसिस करवा रहा हूँ। मैं नेगेटिव था, मुझे इधर से हेपेटाइटिस C हो गई है। अब हेपेटाइटिस C के भी इंजेक्शन लगवा रहा हूँ। ये मेरे बड़े भाई हैं, किडनी इन्होंने देनी है, मेरी कोई केयर नहीं है। सामान इधर से कतारों में लग के मिलना पड़ता है। हुकूमत ट्रांसप्लांट की इजाजत क्यों नहीं दे रही? जिन लोगों के पास किडनी है वो बाहर से ले रहे हैं, हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, मरीज इतने बढ़ रहे हैं। ये क्या कर रही है? मुझे 3 साल से, मैं यंग आदमी, 26 साल मेरी उम्र है। यहाँ पर इस अस्पताल में आए तो आपका किडनी खराब हो गया, आपको हेपेटाइटिस C हो गया? जी, और किडनी खराब भी इधर से पहले हुआ। इधर मुझे 3 साल हो गए डायलिसिस करवाते हुए। 3 साल से दौड़ लगा के थक गया हूँ, मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। ये बड़े मेरे भाई हैं, इन्होंने किडनी देनी। हुकूमत क्या कर रही है ये मुझे बताए पहले। यहाँ पे पेशेंट है, ये देखो अभी इतनी धूप में लोगों ने कतारों में लग के ये सामान लिया ज़कात वालों से। ये को बात करने वाली है कि पेशेंट जिसके पास किराया नहीं है वो कतारों में कितने दिन लग के लाइन लेगा? हाँ जी, नहीं दे रहे दवाई, ये करे जिधर से मर्जी लेके। ये आपको किसने कहा? ये मुझे डॉक्टर ने कहा। यानी डॉक्टर कह रहा है कि हर दवाई बाजार से लाओ? हर दवाई बाजार से लाओ। दवाई कोई नहीं है, कोई नहीं है। दफा जो टुट मचाई सारा, देखो असी गरीब बंदे कितों लेंगे दवाइयाँ? 5 रुपए की सिरिंज भी बाहर से कहते ले, हर चीज के अंदर बाजारों ले, बाहर से सिरिंज, हर चीज मैं दिखाता हूँ, दारू बाहर से, जो भी हर चीज बाहर से। जी आप क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ लोग मर रहे हैं, डेथ हो रही है लोगों की, और ये हड़ताल पे हड़ताल, और हुक्मरानों के जून ही रिंगती है कि ये सोच नहीं रहे हुकूमत क्या कर रही है। ये गरीब आवाम है, यहाँ जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, यहाँ पर लोगों की डेथ हो रही है और पानी तक नहीं है यहाँ पर। ये क्या कर रहे हैं? यहाँ बिल्डिंग से बन रही है, कहाँ पैसे लगाए जा रहे हैं। ये इनको मुअत्तल करें डॉक्टरों को, और यहाँ पर इन लोगों को प्रिंसिपल अपना कमरा बना रहे हैं। यहाँ ये अपने कमरे बनाने अपना सोच रहे हैं। सर अमीर से अमीर होता जा रहा है और गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। यहाँ शुक्र है आपको दुआएं लोग देंगे, आप मीडिया वाले आए हुक्मरानों को, ताकि पता चले कि यहाँ पर कोई आया है। सर कोई नहीं मीडिया वाला आया, यहाँ का मीडिया वाला भी कोई नहीं आया। शुक्र है आप आए और आपकी हमारी आवाज हुकूमत तक पहुँचे। ये आपकी बहुत मेहरबानी, और आप यहाँ पर आए कवरेज के लिए आए ताकि हमारी आवाज भी हुकूमत तक पहुँचे। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। आप जो है ये बताइएगा कि आप 25 रुपए हर घंटे बाद पैसे लेते हैं? नहीं 10 रुपए ले रहे हैं। नहीं हर घंटे बाद पैसे नहीं बढ़ाते? नहीं 10 रुपए। कितनी देर के? ये 12 घंटे के 10 रुपए। 1 मिनट खलो भी नहीं सकता, बदबू आ रही है, इन्नी बदबू आ रही है कि जिदा कोई हिसाब ही नहीं है। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ। नहीं ये अगला नहीं सानू पता, पैसे खा रहा नहीं। सर जब ना पेशेंट को बड़ा सीरियस पेशेंट देखा है, वो ना लिफ्ट के जरिए सीढ़ियों से उतार के लेके आते हैं। उन्होंने जानबूझ के लिफ्टें बंद की हुई। जब कोई अपना कोई खास बंदा आता हो ना तो लिफ्टें चला देते हैं। लिफ्ट भी जो है वो VIP तरीके से चलती है, ऐसे ही होता है। जब कोई MS की चिट वगैरह आती है, वो अपने जो खास बंदे होते हैं उनके लिए ये लिफ्ट चलती है। और बकायदा जो से आम बंदा गरीब बंदा उनको ये पूछते तक नहीं है। और इतनी गंदगी यहाँ पर है, कोई इसका कोई हिसाब ही नहीं है। साहब यहाँ पर लोगों को जो मुश्किलात पेश आती हैं और ज्यादा, और आप लोग 40 MRI करते हैं, वो क्या समझते हैं कि ये किस तरीके से ठीक हो सकते हैं? ठीक करने का यही है कि एक तो हमारे पास आदमी कम है, मैन पावर थोड़ी सी कम है। थोड़ा सा ये है कि हम कोशिश तो हमारी है कि उससे सारा कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये है कि तरीकाकार बन जाए। जिस तरह आप पेशेंट आता है, काउंटर पे आया, पेमेंट दी उसने, उसके बाद वो टाइमिंग पे आ जाता है। अब वो जब टाइमिंग लेने आता है ना तो उसकी कोशिश होती है कि मैंने कल या आज में कहीं तरह हो जाए।
कल या आज में हो जाए, परसों का यार मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है, इधर कोई प्रॉब्लम है, मैंने ये जाना है, मेरा पेशेंट सीरियस है, इसका ये प्रॉब्लम है, उस जब वो सारा कुछ होता है ना, फिर ये 40, 45, 50 की एवरेज हमारी उस लिए बन जाती है कि हम, हालांकि हमें तो नहीं पता अगले पेशेंट किसने आना है, वो उससे भी ज्यादा सीरियस हो, लेकिन हमें नहीं पता होता। स्लिप आई, हमने देखा तो उसके मुताबिक फिर डिवाइस जब हो जाता है, सारा कुछ करके वो लेके आ जाते हैं, तो फिर हम जब टाइम दे देते हैं तो फिर वो अब हम बंदे ना होने की वजह से फिर वो लंबा। नीम साहब ये भी देखा गया कि सिफारशी जो है वो ज्यादा यहाँ पर है। सिफारिश का एक एलिमेंट तो हमारे मुल्क में है ही, एक है, तो इतना ज्यादा वो भी नहीं है कि सारा सिफारिश वाला काम है, लेकिन गरीब आदमी को तो 6,000 रुपया देना पड़ता है, इंजेक्शन का भी, MRI का भी, और उसके बाद जो है ना जो सिफारिशी है वो 6,000 रुपए का, आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट को नुकसान नहीं है? नुकसान तो है, ये नहीं कि नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन वो हर बंदे को डिफाइन करना भी तो जरा मुश्किल। अगर आप डेली 20 MRI आपके पास सिफारशी आए तो 20 का कितने 6,000 के हिसाब से लगा रहे तो ये 1.25 लाख रुपया रोजाना हो गया, तकरीबन इस तरह बन जाता है। 1.25 लाख रुपया महीने का बना 35 लाख रुपया। लेकिन वो सारा एलिमेंट मैं बताया ना कि हमारा निजाम जो सिस्टम का एलिमेंट है वो तो चलता है, वो तो उसके बगैर तो फिर मुमकिन नहीं है। हर बंदे ने अपने अपने उसके मुताबिक काम करना है ना। मैं हूं तो मेरे पास अगर सिफारिश आई है तो मेरे पास 4 आ गई हैं, तो मैंने तो देखना है कि भाई अब किसकी जरूरत सिफारिश वो है, उसे कैसे मेंटेन करना है। इसी तरह हमारे ऊपर जो है वो भी अपने लाजमी बात है हर चीज को मेंटेन करने के मुताबिक। लेकिन अलीम साहब देखे ना, आप तो एक बड़े साफ सुथरे आदमी हैं कि एक आप बात कर रहे हैं सिफारिश की, एक तरफ तो हम बेहतरी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ सिफारशी गरीब आदमी तो देगा 6,000 और सिफारशी मुफ्त करा जाएगा। उसके लिए तो फिर अपना सिस्टम सेट करना पड़ेगा। सिस्टम सेट कौन करेगा? वो ये एक हमारे हॉस्पिटल का लेवल का तो सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम तो हॉस्पिटल का सिस्टम कौन ठीक करेगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ ये सिस्टम में आया, सिस्टम में सिर्फ हॉस्पिटल का ही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी चीजों में ये सारा को प्रॉब्लम है कि गरीब चारा वो रह रहा है, रुलता है, यानी गरीब को कुछ नहीं मिलता। ये तो डेफिनेटली हर बंदे को पता है कि गरीब वाला थोड़ा सा मामला रहता है। सिफारिश का तो एलिमेंट मैं कह रहा हूँ कि घर से शुरू हो जाता है, बच्चों में हो जाता है शुरू। मिसेज ने कह दिया कि ये बच्चा थोड़ा सा ये तंग कर रहा है, इसके लिए आज कुछ कर दीजिएगा, ये उसका कर दीजिए। ये कहना ये कि गरीब अब भी देखे ना, इस वक्त शाम के 4 बज चुके हैं और अभी तक लोग नीचे बैठे हुए हैं, यानी जिनका आगे पीछे आने वाला कोई नहीं है, वो रुल रहे हैं और जो सिफारिशी है वो सुबह सुबह करा देते। नहीं ऐसा नहीं, मैं इस तरह नहीं लूंगा। ये 4 बजे तक आना या 5 बजे तक आना, ये हमारे जो हम पेशेंट की हमारी तादाद है उसकी वजह से। अगर यही हम तादाद कम कर दें तो ये 2, 2:30, 3 बजे तक आराम से सुकून से होकर चला जाएगा, किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि पेशेंट आप किसी दिन आके देखें, आप काउंटर पे वैसे खड़े हो जाएं, कोई बंदा ये नहीं कहेगा मुझे कल आपने ये टाइम क्यों दे दिया, वो कहेगा कल दे दे प्लीज आज। अच्छा अलीम साहब, ये जो प्रोफेसर की आपस की यहाँ पर जंग चल रही है वो क्यों चल रही है? जाहिर तो मैंने तो नहीं देखी कोई जंग किसी किस्म की, कोई अंदरूनी जंग हो किसी। मार कुटाई भी तो हुई है। मार कुटाई का फैक्ट तो तकरीबन हॉस्पिटल को सबको ही पता था कि मार कुटाई वाला भी मामला यहाँ पे हुआ है। नहीं, मारा किसने था? नहीं, मारने वाला सिस्टम तो ये था कि आपस में कोई होगी बात कर लें। अच्छा, कोई बात हो गई, उस पर मार कुटाई हो गई, किसी किस्म की वो आपस में चल। आज आप क्या समझते हैं कि पढ़े लिखे जो लोग यानी प्रोफेसर हजरात अगर आपस में कुछ सनमुखी करेंगे तो वो फिर अपना क्या छोटे लोगों को क्या सबक देंगे? ये तो सर इंडिविजुअल किसी की अपनी सोच है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं मेरा लेवल ये है और मैं किस तरह की हरकत कर रहा हूँ, तो उस पर मैं तो सन्मुखी होनी चाहिए। नहीं होने, मोहब्बत प्यार की बात होनी चाहिए। अच्छा, मोहब्बत प्यार तो हमने इंडिया के साथ शुरू की हुई है। तो मोहब्बत प्यार यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट में कुछ सन्मुखियां हो रही हैं, वो नहीं होनी चाहिए, होनी तो नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह कि ये जो 70 लाख रुपए का मामला मेंटेनेंस का है, जिसमें कहा गया कि 70 लाख रुपए का करप्शन हुई, तो वो उस मामले को वो किस हवाले से ये बाहर आई है? मैं उस मामले को कोई मेरे पास इतना वो तो एथिकली तो कुछ वो नहीं है। मेंटेनेंस का है कि भी मेंटेनेंस का कोई है वो उनका चल रहा है, मेंटेनेंस का मामला है। उसमें प्रिंसिपल साहब और प्रोफेसर साहब का आपस में कोई है? मैं इस बारे में कोई इल्म नहीं कि कोई बात है कि नहीं है किसी किस्म की। यानी ये इशू उठाया गया ना 70 लाख रुपए का, अब इशू है तो वो इशू वाली बात हो सकती है। मैं उस पर कोई बात नहीं कर सकता कि किसी किस्म की कोई इशू किस चीज का है, पैसों का इशू है, कोई मेंटेनेंस का इशू है, उस पर मेरे पास कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं आपको कह सकूं कि भी स्पेशली इसके लिए। अच्छा, आपके जो आउटडोर में लगाई गई है मशीनरीज, वो मशीनरीज जो है वहां पर लोगों को, वहां पर भी सिफारशी लोगों का फ्री हो रहा है? देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ सिफारिश हमारे कल्चर का हिस्सा है। ओके जी, ओके।
कल्चर का हिस्सा है। वो हर बंदा चाहता है, कोई भी हो, वो हर बंदा चाहता है मेरा किसी तरह किसी रेफरेंस के साथ मेरा काम हो जाए, और कहीं भी मेरा अपना एक जाती नुक्ता है कि भाई मेरा ख्याल है कि उसके लिए बहुत वर्कअप करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा दिल को वो हौसले वाला करना पड़ेगा। नाजरीन, आपने देखा कि हम जनरल हॉस्पिटल आए और यहाँ आके मुख्तलिफ लोगों से बात की, और उन तमाम मरीजों का और उनके लवाहकीन का एक ही कहना था कि ये लोग बड़े कर्ब में मुब्तला हैं, बड़े दर्द में मुब्तला हैं। यहाँ की इंतजामिया को कोई ख्याल नहीं है, बल्कि यहाँ तक बताया गया है कि यहाँ के जो प्रिंसिपल तारिक सलाहुद्दीन है, वो प्रिंसिपल जो है नेशनल हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, वो 2 प्राइवेट अस्पतालों में भी काम करते हैं, और वो हुकूमत के इतने चहेते हैं कि उनको PGMI का प्रिंसिपल भी लगा रखा है, जनरल हॉस्पिटल के भी वो प्रिंसिपल हैं, और तमाम तर अख्तियारात उनके पास हैं। फिर जब हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट गए तो वहां जाके पता चला कि एक गरीब आदमी को तो 8-8 हजार रुपया MRI का देना पड़ता है, लेकिन उसकी बनिस्बत अगर देखा जाए तो जो इनके सिफारशी चिट्टों वाले हैं, जो कम अज कम रोजाना 20 से 25 होते हैं, वो 25 लोग अगर सिर्फ 6,000 रुपये भी लगाएं तो 1.25 लाख रुपया रोजाना बनता है, और ये 30-35 लाख रुपया जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल और MS के सिफारशी ले जाते हैं, जिनके टेस्ट फ्री होते हैं, जिनको दवाइयां LP होती हैं, लेकिन गरीब आदमी को तो दवाई भी नहीं मिल रही। गरीब आदमी तो रुल रहा है, बर्बाद हो रहा है। कौन पूछेगा? क्या प्रिंसिपल को और MS को कोई खौफ खुदा नहीं है? क्या उनको मौत का दिन याद नहीं है कि उन्होंने मर जाना है? यहां तक बताया गया है कि प्रिंसिपल जो यहाँ पर तारिक सलाहुद्दीन है, वो 90 लाख रुपया तकरीबन मुबैना तौर पे महीना कमा रहे हैं। ये 90 लाख रुपया लेके प्रिंसिपल ने किधर जाना है? क्या अपनी कब्र में एयर कंडीशन लगवाने, या अपनी कब्र को महल नुमा बना देना इन्होंने? खुदा का खौफ करें। क्या हुकूमत पंजाब सोई हुई है? क्या उसने खुली छूट दे रखी है इस प्रिंसिपल और MS को कि जो चाहे करे और मरीज रुलते रहे, बर्बाद होते रहे? एक दिन आने वाला है जब खुदा ने इन सब से पूछना है, और नाज़रीन आप समझ गए होंगे कौन कसूरवार है, कौन जिम्मेदार है। इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेजबान फैसल दुरानी को कैमरामैन ज़ाहद करीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका, मेरा और पूरे मुल्क का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।